بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بد دعا بھی قبول کرتا ہے۔ لہٰذا نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، گزارش ہے کہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے۔ حضرت آپ علیہ السلام کا سلسلہ و نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا۔ نمبر 3، ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کی مسافت صبح سے لے کر شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پنگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا گیا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اس ایک کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو ضرور قبول کر لے گا۔ پیارے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ 5 جانور کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسل سنور جائے گی، لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ چنانچہ اس بندے نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے، اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے۔ یہ بہت اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے، اور یوں عقاب کے لیے اتنی زیادہ بلندی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا
उतना ही अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पहुँच जाऊँगा। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तक़ी और परहेज़गारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की याद में दिन रात गुजारे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की दुआएं भी इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ को कबूल करता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत सी जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली जिस शख्स से खुश होती है और दुआ देती है तो वो शख्स कामयाब हो जाता है, और अगर बिल्ली किसी को बद्दुआ दे दे तो उसकी दुनिया और आखिरत ख़राब हो जाती है। हदीस मुबारका में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जहन्नम में दर्दनाक अज़ाब में देखा कि जिसने बिल्ली को ऐसी हालत में घर में बांध कर रख दिया कि वो भूखी प्यासी रही है और इस वजह से वो तड़प तड़प कर मर गई। नंबर 3, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेहद पसंद फरमाया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की 3 खुसूसियात बयान फरमाई। नंबर 1, जब चिड़िया सुबह से सवेरे उठती है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करती है। नंबर 2, चिड़िया एक बहुत ही मासूम परिंदा है, उनमें ज़र्रा बराबर भी चालाकी नहीं पाई जाती। नंबर 3, चिड़िया अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत भरोसा रखती है और उनका यकीन है कि जो रब हमें सुबह नई ज़िंदगी देगा वो खाने पीने का भी बंदोबस्त कर देगा कि हमारे लिए काफ़ी है और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है, इस वजह से लोग कुत्तों को मारते हैं और ख़्याल करते हैं कि कुत्तों को मारने से गुनाह नहीं मिलता। तारीख़ में ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं कि कुत्तों को दुख दिया है तो कुत्तों की बद्दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बर्बाद किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्तों को मारने वालों को जहन्नम में डाल दिया, और जिन लोगों ने कुत्तों से प्यार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों की बख्शिश फरमा दी। जान लीजिए कि कुरान पाक में भी कुत्तों का ज़िक्र आया है, जिस तरह अस्हाबे कहफ़ में कुत्तों का ज़िक्र आया है जो कि अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से मोहब्बत की बिना पर जन्नत में दाखिल होगा। जान लीजिए कि कुत्ते का थूक नापाक है, लेकिन कुत्ते को हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता, मगर कुत्तों को घर में रखना हराम है क्योंकि कुत्ते फ़रिश्तों को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है कि जिस घर में कुत्ते मौजूद हों तो उस घर में रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते, जबकि इंसान अपनी खेती बाड़ी या जानवरों की हिफाजत के लिए घर से दूर किसी जगह पर कुत्ता रख सकता है, लेकिन घर के अंदर नहीं रख सकता। नंबर 5, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम चींटियों को एक आम सा जानवर समझते हैं और उसे पाँव तले रौंद देते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि हम लोग अगर चींटियों की अहमियत को जान ले तो कभी भूलकर भी चींटियों को नहीं मारेंगे। कुरान करीम में सूरह नमल मुकम्मल तौर पर चींटियों के बारे में ही है। कुरान पाक में ही ये वाक़या भी मौजूद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की हुकूमत उन्हें अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र एक ऐसे इलाक़े से हुआ जहाँ चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को पास आते हुए देखती है तो दूसरी चींटियों को बुलंद आवाज़ में पुकारती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के नीचे आकर कुचली जाओ। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी की बात को दूर से ही सुनकर मुस्कुरा देते हैं। जान लीजिए कि चींटियाँ भी इंसानों की तरह ही अपनी ज़िंदगी बसर करती है। जदीद रिसर्च से भी ये बात साबित होती है कि चींटियाँ बस्ती बनाकर रहती है। चींटियाँ ज़्यादातर बस्तियों में इस तरह रहती हैं जैसे इंसान अपने माशरे में रहता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी
चींटियों को मारता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे रिज़्क़ की दौलत छीन लेता है। अगर कोई चींटी अनजाने में पाँव के नीचे अगर मर जाती है, अगर कोई चींटी अनजाने में पाँव के नीचे आकर मर जाती है तो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी जानबूझकर चींटियों को मारने की गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम ये गलती जानबूझकर करोगे तो रिज़्क़ से हाथ धो बैठोगे। और अगर कोई चीज़ आपके हाथ से गिर जाए तो उसे चींटियों के लिए रहने दिया करे। इस तरह वो आपको दुआएं देंगी, जिससे अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करेगा। लेकिन उलमाए किराम ये भी बताते हैं कि चींटियों की बाज़ अक़साम ज़हरीली भी होती है, जो अगर जिस्म के किसी हिस्से में पर काट ले तो वहाँ पर सूजन वगैरह आ जाती है। लिहाजा इस बात को दलील मानते हुए उलमाए किराम का कहना है कि अगर इंसानों को चींटियों से ख़तरा हो तो उन्हें मारा भी जा सकता है। मुहतरम नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये 5 बातें लोगों को बयान करने के बाद उन्हें फ़रमाया कि अब मैं आपको एक ऐसी राज की बात बताने वाला हूँ कि कभी भी किसी जानवर या परिंदे को जानबूझकर ना मारो, क्योंकि वो भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। हमें अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है से जिस कदर हो सके प्यार से पेश आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ और क़ुव्वत, ताक़त और क़ुव्वत मरहमत फ़रमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल मंजूर फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।